So today we will start with a new topic. Okay, that is your second chapter. What is your second chapter? Real numbers. So we'll start with real numbers. So what are real numbers? So what are real numbers basically? Real numbers are basically all the numbers. All the numbers which you are aware currently, all are what? Real numbers. Getting it? All the numbers which you are currently aware, like 1, 3, 5, 2.5, 7.5, 2.66, जितने भी नंबर आपने सुना है, all the numbers are what? Real numbers. Now, in real numbers, we have some types. What are those? Like, if any one of you know, what are the types of numbers? Huh? Natural numbers and हाँ बोलो. Natural numbers, whole numbers, हाँ integers, हाँ. Integers, rational numbers, irrational numbers. देखो, like in the real number, first I'll tell you, like in numbers have been divided into two parts. What they are? First is real. Now see over here, what we have two types of number. One is real number and the other one is non-real number, that is imaginary number, or we can say complex number. Okay, other one is complex number. Now in real number we have two types. What they are, if you are aware? Anyone? Real number में आपके दो types है. What they are? They are rational numbers and irrational numbers. ठीक है? What are rational numbers, if anyone is aware? What is rational number? Yes, rational number I have taught you in 8th grade. Huh? Rational number and irrational number. So what are rational numbers? Fractions. Like any number which can be written in the form of p upon q. कोई भी नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. ठीक है? कोई भी नंबर, लाइक इफ आई से रैशनल नंबर क्या होगा? लाइक इफ आई से 5 अपॉन 3, ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर. 2 अपॉन 7, ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज आई कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. अगर मैंने सिर्फ 3 लिखा, so is it a rational number? Is it a rational number? What I said, what is rational number? A number which can be written in the form of fractions like p upon q. तो क्या मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ? Yes, I can write 3 upon 1. Right? I can write this number as 3 upon 1. तो ये हो गया ना फ्रैक्शन. So it is what? Rational number. इसके अलावा 3 अपॉन 1 के अलावा अगर मैंने इसे 6 अपॉन 2 भी लिखा तो भी लिख सकता हूँ ना. 6 अपॉन 2 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा. सो अगेन इट इज व्हाट? रैशनल नंबर. सो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ अ p अपॉन q is what? Rational number. And a number which cannot be written in the form of p upon q is what? Irrational number. जो नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि 1.01, 001, 0001, 4 times 01 and so on. ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर 01 लिखा, 001, 0001, 4 times 01, ऐसे अगर हमने नंबर लिखा है तो ये टाइप के नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया. राइट? दूसरा और एक एग्जाम्पल होगा लाइक 2.32, 332, 332, 4 times 32 एंड सो ऑन. समझ में आ रहा है? सीक्वेंस कैसे हुआ? पहले 32, फिर 332, फिर 332, फिर 4 times 32 एंड सो ऑन. तो ऐसे टाइप के नंबर क्या है? दे आर इरेशनल नंबर. ठीक है? दे आर व्हाट? इरेशनल नंबर. ऐसे टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. Now what is non-terminating and non-recurring? Last year I have taught, right?
व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? आप लोग ने 8th में पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर? यस फिनियस, पढ़ा तो था, याद नहीं है. सो व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर? नॉट श्योर. व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता, राइट? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? टर्मिनेट नहीं होगा ना. तो टर्मिनेट नहीं होगा मतलब वो नंबर रुकेगा नहीं. जैसे कि लाइक इफ आई राइट 10/3, अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ, इफ आई डू द डिवीजन 3/10 का, इफ आई डू द डिवीजन, क्या होगा? 3 3s are 9, 1 रिमाइंडर. यस, 1 रिमाइंडर आ जाएगा. डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाता है. ये प्रोसेस तो आपको पता है, राइट? अगेन 3 3s are 9, अगेन 1 आ गया. इसके बाद क्या करते हैं? हो गया खत्म. क्या और कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. और कर सकते हैं, हाँ, वापस 0 आ जाएगा. गेटिंग इट? अगेन क्या आएगा? 0 आ जाएगा. अगेन 3 3s are 9, अगेन नीचे 1 आएगा, फिर 0 आएगा. ये ऐसे ही होते जाएगा. तो ये 3 3 3 करके कंटिन्यूस कितना भी लिख सकते हैं. तो ऐसे ये 3 3 3 कंटिन्यूस आ रहा है ना. सो दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. समझ में आ रहा है व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर? अगर नंबर रुकेगा ही नहीं, मतलब 3 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यूस लिखते ही जाएंगे, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. गॉट इट? सो व्हाट इज, ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. सो व्हाट इज नॉन रिकरिंग? व्हाट इज नॉन रिकरिंग नंबर? 8 में पढ़ाई किया है कि नहीं? यस. व्हाट इज नॉन रिकरिंग नंबर? हाँ बोलो. रिपीट नहीं होता, करेक्ट. देन हाँ आप बोलो. सेम, जैसे कि जो रिपीट नहीं होता, ये नॉन रिकरिंग नंबर है क्या? रिकरिंग मीन्स रीअकरिंग, फिर से अकर होगा वो. जैसे कि अगर 2.37373737 सो ऑन, तो यहाँ पर ये नंबर क्या है? रिकरिंग नंबर. वाई? बिकॉज दिस 373737 is what is happening? It is reoccurring, right? If I divide any number, calculator दिख रहा है आपको? Yeah. Now if I divide like any number like 1 divided by 7, what I get? 0.142857, 142857, 142857, right? So is it a recurring number, terminating number, non-recurring number? What type of number it is? It is what type of number? Yeah. Non-terminating, okay, and recurring. ठीक है? It is what? Recurring. Why it is recurring? Because 142857, 142857 is getting repeated. That's why it is what? Recurring number. ठीक है? और यहाँ पर ये नंबर खत्म नहीं होने वाला, जितना चाहिए वो आते ही रहेगा. 142857, 142857, 142857 and so on. Okay, so this is what? Non-terminating and recurring number. ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यू आर क्लियर? यू आर गेटिंग इट नो? कि बस सुन रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है ना? ओके. तो व्हाट इज इरेशनल नंबर? अब ये इरेशनल नंबर है क्या फिर? नो, बिकॉज इरेशनल नंबर क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. गेटिंग इट? क्या है? दोनों नॉन आएगा. क्या आएगा इरेशनल में? क्या आएगा? दोनों नॉन है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. ना ही वो रिकर होगा और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा. समझ में आ रहा है? ये इरेशनल क्यों नहीं है? बिकॉज ये रीअकर हो रहा है. ये नॉन रिकरिंग नहीं है. इट इज व्हाट? रिकरिंग. ये नंबर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है. और यहां पर कोई भी पैटर्न, फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? नहीं. ये 01 के बाद 001 आया, उसके बाद 000 आया, उसके बाद 4 टाइम्स 01 आया, तो फिक्स पैटर्न तो रिपीट नहीं हुआ. सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? इट इज नॉन रिकरिंग. दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिकरिंग. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट?
irrational number. समझ में आ रहा है what is the difference between rational number and irrational number? Can any one of you tell me what is rational number? Sit. हाँ. Correct. Any number which can be written in the form of P upon Q is what? Rational number. What is irrational number, Phineas? हाँ हाँ इरेशनल पूछा ना मैंने. अ नंबर, पहले तो पहला डेफिनेशन ये है, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ अ p upon q इज व्हाट? इरेशनल नंबर. सेकेंड डेफिनेशन है, अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज व्हाट? इरेशनल नंबर. अंडरस्टूड? लिखोगे आप तो याद रहेगा. यस. तो अब क्या करो, लेट्स राइट इट. पहले आप ये पैटर्न बनाओ, नंबर्स, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट देयर फॉर यू एज ऑफ नाउ. ये आपको क्लास 11 से शुरू होता है, अभी नहीं है मैथ्स में. ठीक है, आपको रियल नंबर है चैप्टर का नाम. रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. अब रैशनल नंबर का हम डेफिनेशन की, पहले आप ये पैटर्न बनाओ, इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, बताता हूँ, और फिर वो लिखो. ओके, नाउ लेट अस राइट इट. व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर? ये आपने क्लास 8 में भी सीखा है, आपने भी सीखा है, राइट? व्हाट इज रैशनल नंबर इफ यू रिमेंबर? क्या है बताओ. हाँ हाँ. विच कैन बी एक्सप्रेस्ड p upon q. Correct. Now what is rational number? You can write it, the definitions. Rational number. Rational number क्या होता है? A number which can be expressed as p upon q, where p and q are integers. Okay, for example 2 upon 3, 3 upon 1, 5 upon 6, 4, 7 वगैरह वगैरह. राइट, ऑल दिस आर व्हाट? रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर क्या होता है? यस, आपका नाम भूल गया बेटा मैं. श्लोक. हाँ बोलो, व्हाट इज रैशनल नंबर? यस, अरे लिखा तो है सामने. अ नंबर विच कैन बी expressed in the form of p upon q, where p and q both are integers. So such numbers are what? Rational numbers. इसके बाद है आपका irrational number. What are irrational number? A number which cannot be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers. Right? These are what? Irrational number. And one more definition, a number which is non-terminating and non-recurring is an irrational number. ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या है, ये क्लियर हो गया. राइट, नाउ इन रैशनल नंबर वी हैव टाइप्स. व्हाट दे आर? रैशनल नंबर में फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर. व्हाट आर नेचुरल नंबर? इफ एनीवन इज अवेयर, जस्ट रेज योर हैंड. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? यस, जो 1 से स्टार्ट होता है, लाइक 1.5 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर है. तो क्या है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 so on. Right? 1 2 3 4 all positive integers greater than 1 or equal to 1 are what? Natural numbers. ठीक है. So
ऑल काउंटिंग नंबर्स वी कैन से, राइट। अगर आपके बैग में कितने बुक है, अगर आपको गिनने बोला तो आप कैसे शुरू करोगे? 0 से शुरू करोगे? नहीं ना, 1 से शुरू करोगे। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर व्हाट? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर इज W। यू कैन, सिर्फ एग्जांपल लिखता हूं मैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज होल नंबर। व्हाट आर होल नंबर्स? व्हाट आर होल नंबर्स? हाँ बोलो। जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0.1, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। दिस आर व्हाट? होल नंबर्स। ये सब किसके टाइप्स हैं? रैशनल नंबर्स के। ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर के अंडर आता है, राइट। हमने नंबर्स से शुरू किया। नंबर्स में दो टाइप्स है, व्हाट दे आर? रियल, कॉम्प्लेक्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स। अब रियल में क्या क्या है? रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, राइट। इरैशनल क्या है वो भी ऊपर ऊपर से मैंने आपको समझाया, राइट। पूरा डिटेल में अभी तक एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं है, आपके आगे के चैप्टर में है। इरैशनल नंबर के भी आप डिटेल में पढ़ोगे इरैशनल नंबर को। रैशनल नंबर में क्या क्या टाइप्स है अभी हम वो पढ़ रहे हैं, राइट। वन इज नेचुरल नंबर, ये क्लियर है। नेक्स्ट इज होल नंबर, इसके बाद नेक्स्ट इज इंटीजर्स। ये सब कुछ आपने 8 में पढ़ा हुआ है, अगेन इट इज गेटिंग रिपीटेड। इसके बाद आप शुरू का 1-2 लेक्चर आपको ऐसे लगेगा थोड़ा कि आपने जो 8 में पढ़ा है वही आप वापस से कर रहे हो, फिर उसके आगे कहाँ पढ़ोगे, ठीक है, जिनका 8 में अच्छे से हो चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर इंटीजर्स? हाँ फिनियस टेल। ओके, एंड 1 2 आर नॉट इंटीजर, एंड व्हाट अबाउट 1? 1 इज एन इंटीजर। अगर हम एक शॉर्ट में अगर मैं पूछूं लाइक व्हाट आर इंटीजर्स? हाँ, Numbers can be expressed in positive or negative, both. positive and negative. So positive like 2.5 is an integer. Then Like -4, -3, -2. correct, they are integers. Correct. -4, -5, they are integers. But still, a short thing. हाँ बोलो. नंबर लाइन। Any number which is there on the number line. So what do you think? 2.5 is not there on the number line? It is there. Then what are integers? हाँ 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 करेक्ट। जो नंबर पॉइंट में है वो नंबर नंबर लाइन पे होता है या नहीं होता है? जो नंबर पॉइंट में है लाइक 2.5 ये नंबर नंबर लाइन पर है या नहीं है? हाँ सर आएगा पर वो इनविजिबल है। ऐसे कुछ नहीं, इनविजिबल कुछ नहीं। अगर हम चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। वी कैन प्लॉट 2.5 ऑन द नंबर। सो कैन आई लाइक 2.5135 कैन आई प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन? What do you think, this number exists on the number line or not? Yes, Lok. It exists. पता नहीं. Does not exist. क्या? Does not exist. सर समझ गया। All the numbers. रियल नंबर है ना आपका, जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन का नाम क्या है? It is real number line. It is what? Real number line. अगर ये रियल नंबर लाइन है तो इसके ऊपर सारे रियल नंबर होंगे। जितने भी नंबर आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है, वो सब क्या है? रियल नंबर है। अभी तक आपने जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर्स देखा है, ऑल द नंबर्स आर व्हाट? रियल नंबर। सच में वो रियल में नंबर है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर वो आप बाद में पढ़ोगे, अभी नहीं है, क्लास लेवल से शुरू होगा। अभी तक आप, हाँ वही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी रियल नंबर जो सिस्टम है, आपने जितना भी नंबर देखा है, पढ़ा है, ये सब कुछ रियल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है, राइट। सो ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर एंड ऑल द रियल नंबर एग्जिस्ट ऑन द नंबर लाइन। सारे नंबर को इसके आगे और 10 डिजिट भी लिख दिया तो भी वो भी नंबर नंबर लाइन पे है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसे एग्जैक्टली पॉइंट करना, प्लॉट करना इज नॉट दैट इजी। उसके लिए आपको काफी ग्राफ वगैरह बड़ा वगैरह करके प्लॉट करना होगा, ऐसे आएगा भी नहीं आपको कुछ ऐसे। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन।
नाउ व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, शॉर्ट में बोलेंगे नॉन डेसिमल नंबर्स आर व्हाट इंटीजर्स, व्हाट दे आर नॉन डेसिमल। जिस नंबर में डेसिमल नहीं है वो क्या है, इंटीजर। इंटीजर, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें इंटीजर्स में आपका क्या क्या आएगा नंबर्स, लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, so on. Getting it? This all are what? Integers. ठीक है, this all are integers. ये वाले पार्ट को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, -1 से इस तरफ और 1 से उस तरफ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 क्या है, होल नंबर है। 0 आपका ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसका नाम क्या है, इंटीजर। अगर आपको पूछेंगे लीस्ट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, so all positive integers would start from 1, least all negative integers would start from -1, -2, -3 and so on. समझ में आ रहा है आप लोगों को what are integers? इंटीजर्स के बाद क्या है what is that? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स, ये सब कुछ रैशनल नंबर ही है, राइट। अगर रैशनल नंबर को हमें लीस्ट करना है, रैशनल नंबर क्या है बता दिया आपको ऑलरेडी, ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर व्हाट रैशनल नंबर। इसके बाद क्या दिया है, रियल नंबर्स। रियल नंबर इसके भी ऊपर का कैटेगरी, ऊपर का है ना, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल दोनों आता है, राइट। अभी सबका डिनोट कैसे करते हैं, लाइक इंटीजर्स को हम i से डिनोट करते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर रियल नंबर्स, यू आर अवेयर, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, यू आर अवेयर, व्हाट आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, एवरीथिंग यू आर अवेयर, राइट। अब इसमें क्या है, सेट है। व्हाट इज दैट, all the natural number is a subset of whole number। सारे natural number whole number के अंदर exist होते हैं, because natural number क्या है 1 2 3 4 5, all the natural number are there in whole numbers and all the whole numbers are there in integers, so all the whole numbers is a subset of integers, all the integers is a subset of, and all the rational numbers is a subset of रियल नंबर। समझा, यस। huh? Please write it down. Now these are the some properties which are given in your textbook, right? Addition, multiplication of rational number. अब what is commutative? Commutative property क्या होता है, like if any one of you know what is commutativity, you're aware? Commutativity मतलब क्या है, commutative property मतलब क्या है, like अगर आपने 2 + 3 is how much, 5, 3 + 2 is, हाँ बस 2 + 3 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 5, 3 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, कितना ही बेसिक बोल रहे हो, राइट। हाँ ये तो बहुत ही बेसिक हुआ। हाँ तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। सो सच प्रॉपर्टी इज व्हाट, कम्यूटेटिव। अगर आप कोई भी चीज को रिवर्स करने के बाद भी सेम ऑपरेशन करते हो तो आपको सेम आंसर आता है, सो दैट मीन्स दैट इज कम्यूटेटिव। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा 2 3 - 2, व्हाट इज द आंसर, 1, and 2 - 3, what is the answer, 1, -1 it is, right? So is it commutative? No. Rational numbers are not commutative for subtraction, they are commutative for addition and multiplication। समझ में आ रहा है what is commutative? मतलब 2 + 3 किया तो 5 मिला, 3 + 2 किया तो भी 5 मिला, so that means it is commutative for addition। सब्ट्रैक्शन के लिए है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, हाँ। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है, लाइक इफ आई आस्क यू लाइक 4 × 5, व्हाट इज द आंसर, 20, and 5 × 4, what is the answer, 20। so it is
कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, बट मैंने आपको बोला कि 10 divided by 5, what is the answer? 2. And 5 divided by 10, what is the answer? 5 divided by 10, you can write it as 5 by 10, so you can write it as 0.5. No, answer change हो गया, right? 10 divided by 5, the answer is 2, and 5 divided by 10, the answer is 0.5. So इसका मतलब it is not commutative for division. It is commutative for rational numbers, are commutative for addition, for multiplication, not for subtraction, not for division. समझा what is commutative? Next is associative. Associative मतलब क्या? Association क्या होता है? Associate. Some people are associated with some organization. मतलब क्या? वो उसके साथ जुड़े हैं, राइट? सम पीपल आर एसोसिएटेड विद सम कंपनी, मतलब क्या हुआ कि वो उनके साथ जुड़े हैं, राइट? अब यहाँ पर जैसे ये ए जो है बी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? और यहाँ पर ये बी उसके साथ जुड़ गया, यस और नो? बी किसके साथ जुड़ गया? सी के साथ जुड़ गया। तो क्या ये दोनों सेम होगा? लाइक इफ आई आस्क यू 2 + 3 + 5, what is the answer? 10. And if I ask you 2 + 3 + 5, what is the answer? 10. So क्या हुआ ये जब associativity बोलते हैं इसको, this property is what? Associativity. And what does it mean? अगर ये 3 उसके साथ associate हुआ तो भी 10 ही आएगा, अगर ये 3 इसके साथ associate हुआ फिर भी आंसर 10 ही आएगा, राइट? दिस इज पॉसिबल ओनली इन एडिशन. अगर मैं सब्ट्रैक्शन में करूं 2 - 3 + 5, व्हाट इज द आंसर? 6. यस, व्हाट इज द आंसर? यस भूमि, श्लोक 6. 2 - 3 is how much? -1. 2 - 3 is -1. -1 + 5 is 4. So your answer is, समझा या नहीं समझा? पक्का? हाँ, 2 - 3 is -1 and -1 + 5 is 4. अगर मैंने यहाँ पर ऐसे किया 2 + 3 -5, द आंसर इज, अच्छा एक मिनट, ये -2 - 3 + 5, देखो साइन वहां का वहीं पर रखा है, बराबर, ब्रैकेट्स चेंज किया है. व्हाट इज द आंसर? हाँ, 6. आंसर क्या आ गया? 6 आ गया. सो इज इट एसोसिएटिव? राइट? रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, दे आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन. अगर एडिशन होगा तो आप एसोसिएटिव कर सकते हो, ये उसके साथ जुड़े या उसके साथ जुड़े सब चलेगा, करना तो एडिशन ही है, तो कुछ नहीं होगा, फाइनल आंसर आपको सेम ही आएगा. सो दैट्स व्हाई वी से इट एज, पहले वाले जैसा एक पर इसमें ब्रैकेट में 2 नंबर जुड़े हुए हैं. समझा नहीं मैं इसमें? नहीं सर. हाँ वैसे होते हैं पर जुड़े होते हैं. हाँ, बस ये इसके साथ में जुड़े होते हैं, बस, बराबर. नाउ सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, अगर मैं 2 नंबर बोलूं लाइक 2 × 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5, व्हाट इज द आंसर? 30. थोड़ा रुको, बाकी लोगों को भी तो आंसर देने दो. या व्हाट इज द आंसर? 30. एंड इफ आई डू इट 2 × 3 × 5, व्हाट इज द आंसर? 40. What is the answer? You can give the answer. 3 × 5? Suddenly gone blank. हाँ ठीक है. 3 × 5 15 and 15 × 2 is 30, right? तो आपको ये भी 30 आया. So what? Rational numbers are associative over multiplication. समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? हाँ, तो दिस प्रॉपर्टी आपको याद रखना है
कम्यूटेटिव मतलब क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन मतलब पोजीशन सिर्फ इंटरचेंज करेंगे तो आंसर सेम आया, तो दैट इज व्हाट कम्यूटेटिविटी। हाँ ये एसोसिएट था ना इसके साथ, फिर उसके साथ एसोसिएट हो गया, सो दिस इज विच प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ या एसोसिएटिविटी क्लियर है, कम्यूटेटिविटी क्लियर है। इसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या, a प्लस 0 और 0 प्लस a इज a, क्या मतलब, हाँ सर मतलब एक के रंग को हम लोग 1 तो 1 प्लस 0 इक्वल टू एनी नंबर, एनी रैशनल नंबर को अगर आपने 0 से ऐड किया तो क्या होगा, वो सेम नंबर मिलेगा, बराबर, वही है आइडेंटिटी। ठीक है, व्हाट इज आइडेंटिटी, अगर किसी भी रैशनल नंबर को अगर आपने 0 से ऐड किया तो आपको सेम रैशनल नंबर मिलेगा, सो दैट इज व्हाट आइडेंटिटी। ये a यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर, यहाँ पर ये a b ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, एनी रैशनल नंबर एडेड विद 0, या फिर 0 आप पहले ऐड करो, आंसर क्या मिलेगा, सेम। सो दैट इज व्हाट, दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज इफ यू ऐड that number with 0. Got it? Similarly, any number, if you any rational number, if you multiply with 1, you get the same rational number. Getting it? Any rational number, कोई भी number, like ये rational number ले लो, या ये number ले लो, या ये number ले लो, इन सारे number को अगर आप 1 से multiply करोगे तो क्या मिलेगा, same number मिलेगा, you get the same number again. So that's why they are multiplicative identity. The multiplicative identity of any rational number is 1. The additive identity of any rational number is what, 0. So what I was saying, the additive identity of any rational number is, nahin, I was saying the additive identity of any rational number is 0. ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, राइट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 5, क्या होगा, 0। समझ में आया, राइट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5, हाँ 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर इज 1। किसी भी रैशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मतलब सेम रैशनल नंबर आएगा, तो वो कौन सा नंबर है, 1। ठीक है, सो व्हाट मोरल ऑफ द स्टोरी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर इज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर इज 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको पक्का? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, लाइक 80, मोर देन 80%, मोर देन 80, लेस देन 50, कोई नहीं, सबको मोर देन 80%, कि 100% कौन है यहाँ पर, सब समझ में आ रहा है, श्लोक सब समझ में आ रहा है, आई विल आस्क यू क्वेश्चन, पक्का, ओके ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज दैट, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर इज द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। क्या समझा, कुछ नहीं सुनो, the additive inverse of any rational number is the negative of that number। मतलब क्या, additive inverse मतलब 5 है, इसमें आप क्या ऐड करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, अरे 10 हो जाएगा। If you add -5 into it, then what you get, 0। So that means additive inverse of any rational number is what, the negative of that number। ठीक है, अब यहां पर a अगर आपका रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -a, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन दैट नंबर। अभी समझ लो, अगर मैंने 5 लिखा, इसके साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मुझे 1 आएगा, हाँ 1.5, 1 upon 5। If I multiply 1 upon 5, what I will get, 1, no? So the multiplicative inverse of any rational number is the reciprocal of that number। Reciprocal मतलब, what is reciprocal? What is the reciprocal of 2 upon 3?
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 4/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। गॉट इट? समझ में आ रहा है सबको?